Hello, Assalamu alaikum, everybody. Am I audible? Are you able to hear me? Hello. Okay. So, Assalamu alaikum once again, everybody. Now I've been told I am audible, and let me believe, okay, I am audible now. I hope it is clear to everybody. So, um, I think a lot of you know me because why does it not show me कि ये start हो गया है? So let me have a look. Just once again, let me start. Okay, is everything okay? Maybe Noor, you can tell me over the message or something. So we can start. मुझे अभी Yep. So let's start. I think few of you know me. My name is Hassnain Arshad. I belong to the 49th Common Training Program and from FSP Service, Foreign Service of Pakistan. Welcome once again. फर्स्ट ऑफ ऑल माय अपॉलॉजीज आप लोगों के साथ मेरा जो प्लान था वो था मंडे का बट unfortunately I could not make it to Monday make it on Monday because I had a very sudden reception planned और फिर हमें वहाँ पे जाना पड़ गया. There is another piece of news that I am on my way going for my first posting, and because of that, I'm terribly stuck and busy because it's a very sudden plan. तो उस चक्कर में I have very less time to do my preparation. But you have quite some time to do your preparation because we are only in May, or May is a very good time to start your preparation. हम आगे चलेंगे. उसके अलावा ये है कि I still have not gotten free from the work that I am doing here at the ministry. So because of this, uh, I have to manage a lot of things. So, but again, it was due on me, so I had to do it, and I was already feeling bad कि मैं इसको मज़ीद डिले करूं. तो तो let's start. Why criminology? Criminology as a course और सारा कुछ. अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट. अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हमने पहले पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल बातें पहले कर लें या क्रिमिनोलॉजी की बातें कर लें. तो लेट्स डू समथिंग ऑफ फॉर्मल ऑफिशियल और उसके बाद. अच्छा, इससे पहले कि मैं आप लोगों से बात करूं, लेट मी आल्सो रिमाइंड यू पीपल बिकॉज आई एम गेटिंग द सेम मैसेज ऑन व्हाट्सएप एज वेल that today is the last day to apply for CSS scholarship program, or you know it is a good chance for you. Sometimes people say CSS preparation is expensive, तो आप लोग के पास चांस है अगर आपका CGPA 80%, आपका एग्जाम स्कोर 80% या उससे above है या CGPA 3.6 है, so I would have managed to get 70% वैसे. Now I realize फिर आप 70% कर सकते हैं स्कॉलरशिप अवेल, अदरवाइज 65% फॉर 70 to 80% और 60 to 70% स्कोर वाले 60%. सो यू कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप अपना ट्रांसक्रिप्ट शेयर करके नियर पियर से, और आप अवेल कर सकते हैं स्कॉलरशिप. आई थिंक इट इज़ एन एक्सट्रीमली गुड अपॉर्चुनिटी. अच्छा जी, ये एक
फ्री एंडोर्समेंट हो गई, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो few of you know me, a lot of you would not, because you are entering into your preparation journey for CSS. So I welcome first of all, और ये बहुत ही nervous moments होते हैं, I am sure I can relate to it, or and somehow not relate to it as well. तो सो स्लाइड्स हम कोशिश करेंगे आखिरी इवन 15-20 मिनट्स में भी कवर कर। लेट मी ट्राई एंड टेल यू very brief story of mine, and which I find interesting, and let's see if you people find interesting or not. So I am an electrical engineer, and I did my graduation from NUST Islamabad, or I'm pretty old now, I seem to think. I did it in 2014, so now it's 2024. So I am 10 years old as an engineer, or फिर I worked at the private sector for 7 years, actually more than 7 years. I used to work for Coca-Cola, the beverages company, and then I worked for GlaxoSmithKline. So Coca-Cola is the largest uh, company in the world after Apple and Google, but the largest consumer goods company in the world. And then GSK is one of the largest pharma companies in the world, and without a doubt the largest in Pakistan. So I was very blessed and privileged that I got a chance, and somebody of my abilities अगर वो भी ये कर सकता है तो it's very reassuring. But when I switched from Coca-Cola to GSK, so I I sort of started getting bored, because GSK was very good as a company and very exciting. At the same time, it was not so tiresome as Coca-Cola was. So Coca-Cola, may I used to work for 12 hours straight. For GSK, to I was able to manage it 8-9 hours. So मैं थोड़ा शरीफ का स्टूडियस सा बच्चा, जिसकी एक्स्ट्रा वर्क एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो वो फिर मेरे दादा को बहुत शौक था, और उनकी ख्वाहिश थी कि एटलीस्ट आई आई टेक द एग्ज़ाम, आई अपीयर इन द एग्ज़ाम। और दादा इज़ जस्ट वन सिंबल, अदरवाइज मैं जब स्कूल से पढ़ता आ रहा हूँ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर नौकरी में, आई रिमेंबर कोका कोला, एंड आई थिंक समबडी इन जीएसके एज़ वेल प्रॉब्ली। लोगों को बहुत शौक था मुझे ये बात बताने का कि मुझे एक दफ़ा सीएसएस के एग्ज़ाम में ज़रूर बैठना चाहिए। आप लोगों को सारी ये बातें बताने का मकसद ये है कि जितना बड़ा हमने सीएसएस को हवा बनाया हुआ है, जितना हम उसको fantasize or romanticize करते हैं, I don't think it deserves to be like that, but still it's so it's so original, and it's so routine like if you take it that way. तो मैं जीएसके में नौकरी के साथ I took the exam, I and on my friend's insistence, who happens to be my senior in the service now, मैंने एग्जाम दिया और मैं फेल हो गया, पास नहीं हुआ। और मैं ऐसे में I could not get good marks, but I was able to pass in all other 11 subjects. But the twist in the story was that my marks in the rest of the subjects, 11 subjects, were extremely good, thankfully. And they were so good कि वो बहुत सारे लोग जिनके 12 सब्जेक्ट्स भी पास थे, उनसे भी बहुत ज़्यादा थे। तो उस पे मेरे दोस्त ने कहा कि ये देखो, ये तो एक दफ़ा और एग्ज़ाम दे देना। तो मैंने कोई आई रिमेंबर जून में ही रमज़ान था, आई थिंक 2018 का। तो मैंने जून जुलाई में बल्कि तैयारी करना स्टार्ट की थी, और फिर मैंने जनवरी में छुट्टियां ले ली थी ऑफिस से, अपनी 2 साल की छुट्टियां मर्ज की थी, 2018 की भी, 19 की भी। और इस तरह से मैंने फिर एग्ज़ाम दिया था, और अच्छे एग्ज़ाम्स ही थे, बट आई कुड नॉट गेट थ्रू। तो उसके बाद आई वाज अगेन बैक टू माय वर्क, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज डूइंग ग्रेट। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा एक दफ़ा और दे दो, एक। और सीएसएस का भी ना मसला वही मोहब्बत वाला है, आपको एक दफ़ा हो जाए तो फिर आप जूते खा के भी ठीक नहीं होते, यू अगेन वांट टू डू इट। सो मुझे भी था कि ओके, लेट्स ट्राई वंस मोर एंड आई वोंट ट्राई अगेन। एट लीस्ट दिस इज द प्रॉमिस आई केप्ट
Okay, I took the exam for the second time, attempted it in 2019, and then I attempted in 2020। तो मैंने 18-19 की छुट्टियां तो 2020 में बगैर छुट्टियां लिए, क्योंकि छुट्टियां बची कोई नहीं थी, तो दफ्तर से आए वापस और बस फिर 10 दिन की छुट्टी ली और सीएसएस का एग्जाम दे दिया। एंड दिस टाइम हमारे 6 नंबर आ गए, लेकिन सब जगह पास हो गए, किस्मत। So it's all about luck, and I landed into Foreign Service of Pakistan, which was my second preference, and I am here since 2021। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है तो जो आप लोगों को फैसला अभी करने में मदद कर सकती है, और आप में से कुछ लोग शायद सीएसएस की तरफ ना ही आए, वो ये, when I joined my service, so my salary was 7 times less than what I was earning at the MNC। मगर बस पैशन वैशन जो भी कहते हैं उसको, तो वो हो गया इस दौरान। लेकिन मेरी शादी भी पहले हुई हुई थी, सो बट आई मैनेज टू डू इट। आई ज्वाइन द सर्विस एंड आई एम अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग फाइन, नॉट बैड आई शुड से। तो मैंने सारी तैयारी जो सीएसएस की है वो नौकरी के साथ की है, छुट्टियां लेके नहीं की है। 9 to 5 तो नहीं, 9 to 7 की जॉब के साथ की है, या मोर प्रिसाइजली 10 to 8 की जॉब के साथ की है। घर वापस आते थे कराची में, आपको पता है ट्रैफिक जैम एंड एवरीथिंग। So I was very lucky, I should say. And generally, CSS also is not only about competence, but it's also about luck. It's also about smart work and some prayers. So yes, this is how it is. Or another interesting thing now, कि criminology was the only subject जो मैंने calculations और कुछ अंदाजे और कुछ smart choice के तौर पे लिए। So one friend of mine, I think two in the service, they are both seniors, but one friend of mine जो कि जिन्होंने मुझे बहुत पुश किया, और अब वो खुद भी न्यूयॉर्क में बैठे हंस रहे होंगे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपने आईआर नहीं रखनी, आप तो नहीं, वो कहती तुमने आईआर नहीं रखनी, और ये तो बहुत लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो मैंने कहा मेरा जो प्राइम मोटिवेशन है सीएसएस करने की, बीइंग एन इंजीनियर, वो तो यही है कि मैं ने ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े और मुझे बहुत शौक था, और मैं तो इंजीनियर बनने के चक्कर में बड़ी बोरियत वाली पढ़ाई की है। तो मैंने कहा यार नहीं रखूंगा, तो मैं कहा ओके, यूएस हिस्ट्री इज वेरी लो स्कोरिंग। तो मैंने कहा द वन सब्जेक्ट दैट आई हैव बीन very interested in since my childhood. I remember 2004 का जो अमेरिकन इलेक्शन, since then I've been following US history, US politics and everything। तो US history नहीं रखूंगा तो ये भी मसला है, तो ये जी 300 नंबर की चॉइस। सोशियोलॉजी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, सोशल साइंसेज में मास्टर्स करने का। जब हम नस्ट गए तो पहले 2 सेमेस्टर्स के बाद मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि नस्ट में मैं स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जब बिजनेस स्कूल ही होता था उसी में था, कि वहाँ पे दाखिला लेंगे। तो उन्होंने कहा भाई आपका जीपीए अच्छा है, पहली तो बात है, आप क्यों पागल हो गए। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि आपके सारे पैसे भी ज़ाया होंगे और आपको सेमेस्टर्स भी हम काउंट नहीं करेंगे, सो you'll have to begin from semester one। So it deterred me and I did not change my engineering। I'm so lucky that I did not। I am very thankful to Allah। और उसके वास्ते हम लोग, मैंने कहा फिर सोशियोलॉजी तो मैंने रखना ही रखना है, सोशियोलॉजी इज लाइक माय पैशन सब्जेक्ट। और फिर थोड़ा सा जेंडर इश्यूज, जेंडर स्टडीज, स्पेशली वुमेन इश्यूज, अफर्मेटिव एक्शन, इस तरफ थोड़ी दिलचस्पी थी। लेकिन जेंडर स्टडीज वाज नॉट अ बैड स्कोरिंग सब्जेक्ट जनरली। सोशियोलॉजी लो स्कोरिंग था, तो ये 500 तो मैंने रख ली। Then I was left with choosing one subject. So it could have been either public policy and governance, or public administration, or पंजाबी। पंजाबी क्योंकि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, मदर लैंग्वेज नहीं है, तो मुझे पंजाबी भी कोई ख़ास नहीं आती थी। और मेरे दोस्तों ने कहा रख ले, मैनेज हो जाएगा, हाई स्कोरिंग है। पंजाबी भी आई कुड नॉट गो फॉर। और क्या सब्जेक्ट्स थे, तो आई वाज लेफ्ट विद वेरी फ्यू। वन वाज एनवायरमेंटल साइंसेज और साइकोलॉजी। बट आई सेड कि यार कुछ बहुत ज़्यादा ही शौक शौक हो गया, तो अब कोई ऐसा सब्जेक्ट रखते हैं जिसका ताल्लुक भी बनता हो। फिर हमने कहा कि अच्छा, हम ये जो सोशल साइंसेज में इतनी दिलचस्पी है, सोशल साइंसेज पढ़ रहे हैं, उसके दो
रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि अब ज़रा एक स्मार्ट चॉइस करके जेंडर स्टडीज़ के साथ क्रिमिनोलॉजी रख लेते हैं, और वो फिर मैंने क्रिमिनोलॉजी रखी। और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आई थिंक आई गॉट 66 or 67, but even in second attempt, when criminology had a bad trend of scoring 2020, I think I managed to land somewhere in the higher 50s, which I thought was bad score then. A lot of our friends shared their DMCs and we came to know, no, it was not that bad a score. That's how I landed in criminology. अब ये पूरी स्टोरी और पर्सनलाइज्ड टच के पीछे क्या वजह है, वो यही है कि क्रिमिनोलॉजी वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने अक्ल से, दिमाग से सोच के, अपने हालात, अपनी इस्तिताअत के हिसाब से रखा कि आई हैड लेस टाइम टू प्रिपेयर बिकॉज आई वाज डूइंग थ्रू आउट माय प्रिपरेशन, इवन इन 2 years that I prepared, 2 years तो नहीं कहना चाहिए, ऑलमोस्ट 16 months इन टोटल। फर्स्ट अटेम्प्ट देते हुए मैंने जुलाई में किया, तो तकरीबन 6 months वो, और उसके बाद 10 months तो हमने क्या ही किया, लेकिन आई could not get free. I had to go abroad for my work related issues. Even CSS देने से 1-2 महीना पहले भी I think I went abroad. I was thinking I should I go or not. Then my friend said, "Okay, go. If you are going to pass anyway, or you're going to sit in the exam, so it's आप अपने trips ना मिस करें." तो उसके साथ साथ भी ये हो जाता है। पहली बात ये बताने की। दूसरी बात है, क्रिमिनोलॉजी एक अच्छा स्मार्ट सब्जेक्ट है। हमें हेल्प करता है, और वो हम वाई वाले पार्ट में आ जाते हैं। सो लेट्स गेट टू द formal part of our presentation. I hope it is good. So far so good. We don't have a problem as yet. ठीक है जी, just give me a minute. आप लोगों को अब आवाज सही आ रही है? Is it that big a problem? I think I was sitting a bit far. Now it should be okay now. And I was speaking a bit in a low voice, a bit low voice, so I think it's going to be better. अच्छा जी, जब हम क्रिमिनोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या-क्या कुछ आता है, और जो कुछ हमारे दिमाग में आता है उसमें से क्रिमिनोलॉजी एज़ अ सब्जेक्ट कितना है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ क्रिमिनोलॉजी में हम क्राइम्स, क्रिमिनल्स से डील करते हैं, या सीआईडी और दया और इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह की भी हैं, बट दे आर नॉट द सब्सटेंटिव और अ वेरी सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ इट। क्रिमिनोलॉजी किस बारे में है? तो क्रिमिनोलॉजी जनरली, अगर आप सोशल एस्पेक्ट्स देखें, सोसाइटी के वो एस्पेक्ट्स जो सोसाइटी के अंदर क्राइम को कंट्रीब्यूट करते हैं, उसकी कॉजेज़ ऑफ क्राइम, कौन किन वजूहात की बिना पे क्राइम, टाइप्स ऑफ क्राइम, क्राइम किस तरह के होते हैं, फिर किस तरह से क्राइम कमिट किया जा रहा हो। ये तो हो गया। तो क्या करेंगे हम, क्यों ये सब कुछ जानना चाह रहे हैं? उसकी वजह ये होती है कि द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी इज़ टू कर्ब क्राइम, ठीक है? फिर है रिडक्शन इन क्राइम, के तो क्राइम की रोकथाम हो, रोकथाम ना हो तो कम से कम उसकी अकरेंस में कमी की जाए, उसको प्रिवेंट किया जाए। और फिर उससे मुतालिक जो लेजिस्लेशन, कानून साज़ी है, उसकी तरफ, एंड देन व्हाट आर द नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशंस दैट आर देयर टू कंट्रोल क्राइम। तो ये ओवरऑल अगर आप देखें तो मैंने इस तरह से समराइज कर लिया, causes, types, the way crime is committed, and then controlling and prevention of crime, and the organizational structure in order to prevent and prohibit crime। ठीक है जी। अब जी कैसे सब्जेक्ट ग्रुपिंग मैंने आपको बड़ी क्लियर अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर दी। सब्जेक्ट ग्रुपिंग के लिहाज से it has a dual advantage of being an inert or an insulated subject as well as an interrelated subject। तो ग्रुपिंग में क्रिमिनोलॉजी उस उधर आता है। बाकी अगर आप इस ग्रुप के सब्जेक्ट देखें तो उससे आपको ये बहुत बेहतर लगता है। क्रिमिनोलॉजी लफ्ज़ थोड़ा-सा डॉन्टिंग लगता है, बट यू शुड नॉट बी डिटर्ड एट ऑल। इट्स अ वेरी सिंपल, मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट। इसकी कुछ कैच भी हैं, वो हम बताते हैं। इंटर रिलेटेड फील्ड्स, क्रिमिनोलॉजी बहुत सारी फील्ड्स के साथ इंटर रिलेटेड है। जब हम हमारे मॉड्यूल से लेक्चर्स भी पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो वो इंटर रिलेटेड फील्ड्स में सोशल साइंसेज आ गई, सोशियोलॉजी है, जेंडर स्टडीज बिकॉज जेंडर एंड क्राइम है, सोसाइटी एंड क्रिमिनोलॉजी तो ओवरऑल है ही क्राइम एज अ सोशल फिनोमिनन के ऊपर बेस करती है।
उसके अलावा फोरेंसिक साइंसेस इसमें आती हैं, साइकोलॉजी का कुछ पार्ट है, इसके अलावा बायोलॉजी इन वन वे और द अदर हम डिस्कस ज़रूर कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़। Another important thing is it's not so technical as a subject. Environmental sciences हमें बहुत straightforward, easy going लग रहा होता है। Environmental sciences और even psychology, they have two problems. ये दोनों सब्जेक्ट्स काफी टेक्निकल एस्पेक्ट भी रखते हैं। एक तो इनके कोर्स आउटलाइन बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत एक्सटेंसिव है। एंड एज फार एज आई रिमेम्बर बोथ ऑफ दीज यूज्ड टू बी 200 मार्क्स सब्जेक्ट, तो मार्क्स तो इनके 100 हो गए, लेकिन कोर्स कंटेंट पे बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा जी, उसके अलावा और की क्या चीजें, जस्ट गिव मी हाफ अ सेकेंड, जस्ट गिव मी, ओके। तो इसके अलावा enthusiasm एंड पैशन, अच्छा इसमें एक ना रिलेटेबिलिटी का एक फैक्टर है। Whatever is happening around you, you can relate to it, and crime is happening around us, and there are different aspects of crime. जो लोग, yes, technology is one field that is very interrelated because of white collar crimes और digital era के जो crime है, cyber crimes, organized crime, ये भी हम डिस्कस करते हैं, तो ये बड़े contemporary issues हैं। ओह, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी इसमें आती हैं। तो वो टेक, और वो इतनी टेक्निकल एस्पेक्ट्स उसमें इतने ज्यादा वाजे नहीं होते, बट स्टिल जो इंटरेस्ट है आपका, जो इंथुजियाज्म है, जो रिलेटेबिलिटी का फैक्टर है, दैट इज वेरी मच देयर। और उसके साथ साथ ये है कि कुछ ना कुछ देयर इज, इट हैज समथिंग इन इट फॉर एवरीबडी। फॉर समबडी जो वुमेन राइट्स, जेंडर इश्यूज से रिलेट करता है, उसके लिए जेंडर क्राइम की चीजें हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस ये जैसे आर्मी और पुलिस और इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको भी ये अट्रैक्ट करती है फील्ड। क्राइम कंट्रोल के ऊपर जो लीगल लॉ का बैकग्राउंड रखते हैं, उनके लिए सीआरपीसी, सीपीसी, कुछ ना कुछ है। बट द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट इज कि ये बहुत ज़्यादा पेडेंटिक नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है कि अब जैसे लॉ एंथुसियास्ट इसके अंदर लॉ का रिलेशन और रिलेटेबिलिटी तो फाइंड कर पाते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे लॉ रटना नहीं है, या आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये यही वाले सब्जेक्ट ग्रुप में आता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और क्रिमिनल लॉ और मर्केंटाइल लॉ, तो वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, उन उतना टेक्निकल सब्जेक्ट ये नहीं है। अच्छा, कंटेंट इसका काफी स्मार्ट और काफी कंसाइज और ब्रीफ है, बहुत ज्यादा नहीं है अगर आप देखें। और स्कोरिंग ट्रेंड इसका बहुत लो नहीं है। कुछ एक दो साल में ये हुआ है कि बहुत हाई स्कोरिंग ये सब्जेक्ट नहीं रहा। उसका रीजन ये था दैट स्टूडेंट्स हैड बिगन टू टेक दिस सब्जेक्ट फॉर ग्रांटेड, बिकॉज 2015 16 17 इसमें तो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते थे कि जो आपकी कोर्स आउटलाइन होती थी वही उठा के एक सेक्टर, बट ऑल्सो इट वो हैड टू बी taken into account के in the CSS exam the examiner is always expecting something from you, so it was important कि आप उसको एग्जामिनर को बेवकूफ़ मत समझिए। आप मेरे मॉड्यूल्स के अंदर भी कभी कभी, और जब हम पास्ट पेपर्स डिस्कस करते हैं, मैं इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करता हूँ, इट इज़ नॉट लाइक योर मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट एग्जाम और इवन योर ओ लेवल्स एग्जाम. So in these examinations, sometimes if you have a vague or fairer idea, people they sometimes exaggerate the objectivity and critical aspect of or the critical nature of questions in the O levels exam, but they are not. In CSS, sometimes the question appears very straightforward and simple, but at the same time, simultaneously, the question,
asker or your examiner is expecting something from you which involves your informed opinion. आपका critical analysis वो चाहता है। आप ये लफ्ज़ भी आपको हमारे मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा तो और इसीलिए मैंने कंटेंट और इंफॉर्मेशन के साथ-साथ इस बात पे बहुत तवज्जो दी है कि जब हम मॉड्यूल डिज़ाइन करें कि आपका ओपिनियन, आपकी राय, आप का इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बहुत मैटर करे। आपका एनालिसिस ये दीज़ आर द 2 वर्ड्स आई ऑलवेज़ emphasize on while teaching or while facilitating criminology course or for that matter these are the two things I emphasize on while teaching any other subject as well, and these are critical analysis and informed opinion. आप सारी इंफॉर्मेशन अगर जॉट डाउन करके आ जाएंगे बट द इंफॉर्मेशन इज डिवाइड ऑफ योर एनालिसिस, वो ये नहीं बता रही कि आप इस प्रॉब्लम के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप इस इशू को किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, देन इट विल बी यूजलेस फॉर द एग्जामिनर एंड फिर लोग पीपल वंडर कि फिर हमारे नंबर क्यों कम है। आप एक हद से ज़्यादा आपका रट्टा, आपकी मेमोरी, आपकी नॉलेज आपको हेल्प नहीं करेगी अनलेस आपने उस सब्जेक्ट और उसके कॉन्सेप्ट्स और उसकी स्पिरिट को अंडरस्टैंड करके इम्प्लीमेंट किया। So we are going to go ahead with it. How? तो ऑफ कोर्स बिफोर एग्जाम करें, 4 सेक्शंस हैं और 50% चॉइस है। अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं एडवांटेज है। जनरली वन हैज टू अटेम्प्ट four questions out of 7. However, in criminology they have 8 questions and you have to attempt 4. So 50%, but at the same time किसी सेक्शन के अंदर कोई चॉइस नहीं, so it is हाफ चॉइस बट ऑल्सो नो चॉइस बिकॉज आपने हर सेक्शन में से कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करना है। यू कैन नॉट कैटेगोरिकली इग्नोर्ड अ सेक्शन इंटायरली, so this subject demands some justice from you कि आप हर सेक्शन को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस देंगे। अगर आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स इन क्रिमिनोलॉजी पे बात कर रहे हैं तो आप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वाले सेक्शन को भी कौन करेगा? हाँ, मैं करूंगा और आप लोग मिलके करेंगे। हम इसकी तैयारी नियर पियर के प्लेटफॉर्म से और बहुत ज़रूरी है व्हेन कोर्स बिफोर द एग्जाम्स। तो हाउ पे हम चलते हैं। पहले लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लेक्चर्स की ऊपर तवज्जो दीजिए और हम अभी चलते हैं कि हमारी क्या अप्रोच रही है। और क्रिमिनोलॉजी में एक चीज़ हमने मॉड्यूल में की, कभी कभी नियर पियर और कभी कभी नियर पियर मुझ पर और मैं नियर पियर पर हमने प्रेशर बनाए रखा है कि हमने अपने कोर्स कंटेंट को अपडेट करना है। एंड यू कैन एक्चुअली सी कि जब कोई पेपर आया या कोई कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ या और जिसका हमने देखा कि हमने उसको अपने मॉड्यूल में उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी है, तो हमने पूरे स्टैंड अलोन लेक्चर्स उसके ऊपर दोबारा ऑर्गेनाइज किए और वो अपडेट होते गए। हमने उसके ऊपर फॉरेन वेबिनार्स किए, क्वेश्चन आंसर सेशंस किए एंड डिस्पाइट whatever is the engagement, I made sure that I keep on interacting with the students, answering their questions. And I remember, I think just before the exam even, I had a session with the students और वो उनके सवालात, उनके पेपर चेक करना। So we made sure कि ये सारा कुछ हो। At the same time, if someone is interested to consult some book, that is also important. ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ CSS के लिए पढ़ें, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ आ रही हो या कोई ऐसी चीज़ है जो आप जिसको आप मज़ीद समझना चाहते हैं। तो या फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और ये इसकी डेफिनेशन कैसे इवॉल्व हुई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फॉर एग्जांपल रॉबर्ट के मर्टन की जो सोशल स्ट्रेन थ्योरी है, तो वो सोशल स्ट्रेन थ्योरी पेपर के लिहाज से तो अहम है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर मजीद बिल्ड करना चाहते हैं अपनी नॉलेज, तो फिर आप यू कैन रीड अ बुक फ्रॉम आउटसाइड एज वेल। सीआरपीसी, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द सेक्शंस, बट एट द सेम टाइम सीआरपीसी को अगर आप गो थ्रू करना चाहिए, खासकर जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है उसको देख लें या जुवेनाइल क्राइम से रिलेटेड। इंटरनेट इट्स इम्पॉर्टेंट, न्यूज़पेपर इम्पॉर्टेंट। व्हाई? मैं कुछ क्रिमिनोलॉजी की जो, जैसे मैंने आपको बताया, आई डिड नॉट हैव टाइम सो आई कुड नॉट जॉइन एनी अकेडमी। फॉर मी एवरीथिंग हैड टू बी डन by myself or reading one book that I managed to read, and then I had nothing else. Excuse me. उसके बाद कभी कभी आप बोर भी हो जाते हैं। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं किसी न किसी चीज़ पे
कोई थ्योरी के ऊपर या कोई किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई एक छोटी सी यूट्यूब की 8-9 मिनट की वीडियो लगा लेते थे, एंड यूज्ड टू ब्रश माय टीथ समटाइम आई जस्ट गोइंग फॉर अ वॉक, बट इट वुड हेल्प मी, सो इट वुड कन्विंस मी कि मैं पढ़ नहीं रहा क्योंकि मैं किताब नहीं पढ़ रहा होता था, बट इट वुड ऑल्सो give me a relief क्योंकि I'm just listening to a video but at the same time I was gaining something. So internet is important. Newspaper, one piece of advice that I would suggest to everybody to do, और ये एक चीज है जो लोग मेरे ऊपर यकीन नहीं करते कि आपने 3-4 महीने में कैसे तैयारी की सीएसएस की नौकरी, तो ये सच है, but at the same time I think the one thing that gave me an edge over others or overall could have been कि मुझे अखबार पढ़ने का बड़ा शौक था, तो आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर डेली, और चाहे मेरी नौकरी जितनी भी बिजी होती थी वर्क डेज में, मैं पूरे हफ्ते के अखबार सैटरडे और संडे को जरूर पढ़ता, डॉन पढ़ता था, उर्दू अखबार भी कोई ना कोई पढ़ लिया, या डॉन और उसके पेजेस कर लिए, कभी कभी आप जो है वो कोई ना कोई फॉरेन अखबार के भी फेसबुक पेजेस को किया, तो आप स्क्रॉल कर रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मेरी अब जितनी फेसबुक जो वो होती है सर्फिंग, उस पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो मुझे खबरें ही नजर आ रही होती है, बट आई हैव गॉट यूज्ड टू इट एंड आई लव इट, सो इट्स इम्पोर्टेंट। अगेन क्रिमिनोलॉजी में भी करंट अफेयर्स और यस, हाउ crime is evolving, what are the current trends of or emerging trends in crime and criminology, women in crime जब आता है, modern concepts in crime, तो मैंने कोशिश की है कि उन चीज़ों को कवर किया जाए। चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर हो गया, फीमेल जेंडर म्यूटिलेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक किन मुल्कों में हो रहा है, डाउरी के इश्यूज कहाँ पर हैं, इसके अलावा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की क्या शॉर्टकमिंग है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पे मैंने बहुत अच्छी कमेंट्री जो है वो डॉन में देखी, सारा बिलाल और साहिबा जस्टिस प्रोजेक्ट के ऊपर हैं, इसी तरह जो डिजिटल लिटरेसी और साइबर क्राइम इसके ऊपर उसामा खिलजी अच्छा लिखते हैं, सो दीज आर द एरियाज जो आपको हेल्प कर सकें। ज़रूरी नहीं कि आपने इन तमाम के ऊपर 100% अपना एफर्ट लगाना, बट यू कैन कम अप विद अ मिक्स, समटाइम्स यू गेट बोर्ड, तो आप लेक्चर्स के साथ साथ कोई बुक का कोई आर्टिकल, कोई बुक का एक चैप्टर पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर का आर्टिकल आपको हेल्प करता है, तो यू सी CSS does not have a course, it just gives you a guideline and outline, और फिर आपने उसकी बेस के ऊपर डिसाइड करना। अच्छा जी, अब वो नसीहत के कुछ चीज़ें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमारा जो नियर पियर पे कोर्स है वो हमने कैसे डिज़ाइन किया और उस पे क्या फोकस है, तो सबसे पहले तो हमारा प्राइमरी फोकस इस बात पे रहा है कि आपको अप टू डेट नॉलेज मिले, उसमें जो चीज़ें अपडेट हो रही हैं, हमारे स्टैटिस्टिक्स हो गए, कोई और कोई लेजिस्लेशन अपडेट हो गई है, कहीं लेजिस्लेशन इन्फोर्स हो गई है, कोई इंटरनेशनल एरिया में कोई अकरेंस हो गई है, स्टैटिस्टिक्स में ड्रास्टिक चेंज आया है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के ऊपर जैसे बात हो गई, या कोई, तो हमने हमने अपने लेक्चर्स को कॉन्स्टेंटली अपडेट किया है, हमने उसके अंदर डिटेल्स ऐड की हैं, फिर उसके साथ-साथ एक चीज़ ये इस कोर्स का हिस्सा है कि रिलेटिंग द प्रॉब्लम विद द सिनेरियो, इट इज़ इम्पोर्टेंट, तो हमने कोशिश की है रियल लाइफ एग्जांपल्स को ज़्यादा से ज़्यादा कोट किया जाए, और एनालिसिस वाला जो पार्ट है, क्रिटिकल एनालिसिस, मेरे हिसाब से उसके ही नंबर है, मेरे मैंने कोई बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की, मगर अगर आप देखें तो मैंने एफपीएससी के एग्जाम्स में 3 दफ़ा बैठा हूँ, 2 दफ़ा सीएसएस, थर्ड टाइम फॉर माय जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है फॉरेन से, एंड आई मैनेज टू स्कोर वेल इन ऑल थ्री। द वन ट्रिक दैट आई seem to believe was कि I was never focused at beautification of my paper, मैं मार्कर्स और पेन और रंग बिरंगे मार्कर्स और फुट्टे और लाइनें और स्पेस और पेज छोड़ना, ये इनमें से किसी चीज़ पे फोकस नहीं, इवन मैंने टेबल्स और डायग्राम फ्लो चार्ट्स के ऊपर बहुत कम फोकस, माय प्राइमरी फोकस वाज टू गिव माय ओन ओपिनियन बेस्ड ऑन माय नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, एंड इट ऑलवेज डिड वंडर्स फॉर मी, सो आई वुड आल्सो सजेस्ट, और मैंने कोशिश भी की है अपने मॉड्यूल के अंदर कि आपको वो चीज़ें ज़रूर बताई जाएं कि ये तो नॉलेज हो गई, अच्छा जी
फॉर एग्जांपल मर्टन के अलावा अब हर्शीज की जो सोशल कंट्रोल थ्योरी है वो ये बात करती, बट एट द सेम टाइम इस थ्योरी का रियल लाइफ में किस तरह से हम मुजाहिरा देख रहे हैं, वन, सेकेंडली इस थ्योरी की शॉर्टकमिंग्स क्या है, इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वो हमारी लाइफ में हमें किस तरह से, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर बहुत जोर दिया। जब भी आपके क्वेश्चंस आए हैं सीएसएस में, जब नए क्वेश्चंस आए हैं और हमें लगा कि मॉड्यूल ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर उतना फोकस नहीं किया, so आई हैव एक्चुअली अपडेटेड द मॉड्यूल, आई हैव एडेड लेक्चर्स। आपका कोई ऐसा क्वेश्चन जो बेस कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल कि सर आपने साइकोलॉजिकल उस पर बहुत ज्यादा नहीं फोकस किया, तो आई मेड श्योर दैट इट इज आल्सो देयर। एक लेक्चर तो मुझे, थैंक्स टू नियर पियर, इफ आई डोंट थिंक, आई डोंट रिमेम्बर इफ नूर वाज हियर, बट देयर द बिफोर हर जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर थी, उन्होंने एक ही लेक्चर में से दो दो दफा भी रिकॉर्ड कराया, एंड आई वाज ऑलवेज एडामट कि ये मैंने किया हुआ है, बट दे सेड नहीं ये नहीं है, स्टूडेंट्स का बहुत फोकस है। बट आई एम ग्लैड इन रेट्रोस्पेक्ट उन्होंने अपने कोर्स फैसिलिटेटर से ज्यादा अपने क्लाइंट, अपने स्टूडेंट पे फोकस किया, एंड दैट्स राइट। कोर्स फैसिलिटेटर को तो वो चीज़ आती है, बस उसको क्या है, दोबारा से उसको स्लाइड्स बनाना पड़ी क्योंकि अपडेट करना, दोबारा से उसने रिकॉर्ड करा दिया और वो बैठ गया। बट एट द सेम टाइम फॉर एन एग्जाम, फॉर कैंडिडेट फॉर एग्जाम, ये बहुत मैटर करता है। ऑल्दो वो टॉपिक ऐसा था, आई एम स्टिल कन्विंस्ड कि वो टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम दैट इज द फोकस ऑफ नियर पियर on your feedback and input, or regular sessions of consultation of queries, तो ये सारी चीजें, these are the feature of this। इसके साथ साथ कोशिश ये की गई है कि एक किसी सोर्स के ऊपर रिलाई ना किया, मल्टीपल सोर्सेज के ऊपर रिलाई किया जाए। आपको लिंक्स भी साथ साथ प्रोवाइड किए गए हैं मॉड्यूल्स के अंदर, ताकि आप जो हैं इंटरनेट पे भी उन लिंक्स को एक्सेस करके भी ज़्यादा जान पाए। सो वी हैव नॉट ट्राइड कि जी बस जहाँ से हमने एक्सेस करके बिल्ड किया है अपनी कंटेंट को, तो हम बस वो लोगों से, एटलीस्ट इन माय केस, इन माय सब्जेक्ट, यू वुड नॉट फाइंड, एंड आई एम एक्सेसिबल। इसके साथ साथ यस, पेपर चेकिंग, फीडबैक, ये चीज़ें भी इसका हिस्सा रही हैं। So I have received very good feedback from my students, and now 2 years have passed, two batches have gone, and if I look back, I feel satisfied because I see people's responses. But at the same time, not everybody is happy because everybody cannot be made happy. मगर what is more important is what is the general feel of the subject। आप सीएसएस की तैयारी करेंगे, आप एंशियस रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, आपको बस नहीं चलेगा कि आप कहें कि ये सारी तैयारी जो है ना, वो मुझे मेरी एकेडमी, मेरा कोर्स, या मेरा ट्यूटर, या मेरा जो भी मेंटोर, एक बहुत कॉमन वर्ड है, वो करा दे। इट्स नॉट पॉसिबल। लुक एट मी, लुक एट अ लॉट ऑफ पीपल, बियॉन्ड अ लिमिट आपकी एकेडमी, आपका कोर्स आपको हेल्प नहीं कर सकता। इट्स ऑल पर्सनली मोटिवेटेड इंटरेस्ट। ठीक है जी, अभी कूल। अच्छा जी, सो अब जरूरी क्या है, क्या क्या चीजें हैं, हमेशा रियल लाइफ सिनेरियो के साथ आपने रिलेशन बनाना है जो भी आप कॉन्सेप्ट डील करें। इससे पहले एक चीज बहुत अहम है कि क्रिमिनोलॉजी का एक रूल है, क्राइम एज अ सोशल फिनोमेना। ये आप मॉड्यूल्स में भी मुझे बार बार रिपीट करते सुन लेंगे, इफ यू साइन अप फॉर दैट, एंड दिस इज समथिंग व्हिच सम स्टूडेंट्स फॉरगेट। आप क्राइम एज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेनन, एज अ बायोलॉजिकल फिनोमेनन की ऊपर नहीं फोकस करें। क्रिमिनोलॉजी की जो असास या फाउंडेशन है, वो क्राइम को एज अ सोशल फिनोमेनन दी। तो हमेशा सोसाइटी में से एग्जांपल्स लें, रियल लाइफ सिनेरियो से रिलेट करें। देख, ठीक है, हमेशा थेरीज को रेफर, हर क्वेश्चन, हर फिनोमेनन, हर प्रॉब्लम, हर कॉन्सेप्ट को जब भी आप डिस्कस करें, सवाल पूछा जाए, उसको किसी न किसी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ लिंक करें, सोशल स्ट्रेन थ्योरी के साथ, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के साथ, सोशल कंट्रोल थ्योरी के साथ, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी के साथ, और थ्योरीज हैं जो थ्योरी आपको सही लगे, सोशल लेबलिंग थ्योरी के साथ, बट ऑलवेज ट्राई टू लिंक इट। न्यूज़पेपर इज अ मस्ट, मैंने कही। कोटेशंस आपने कोट करनी है, कर दें, बट नॉट essential, that's why I've written few quotations। Official reports and statistics, some at some point in time,
अगर आप की प्रेपरेशन इतनी अच्छी है एंड यू वांट टू improve further, तो आप ऑफिशियल रिपोर्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स को कोट करेंगे तो इट विल हेल्प यू, बट प्लीज रिमेंबर इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर ओरिजिनल कंटेंट विच इज आपकी थेरीज, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके आइडियाज ऑफ क्रिमिनोलॉजी. These are the garnishing items. फॉर एग्जाम्पल जुवेनाइल जस्टिस के स्टेटिस्टिक्स क्या है, जुवेनाइल क्राइम की क्या occurrence rate है, क्राइम अगेंस्ट विमेन की क्या प्रेवलेंस रेट है, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट क्राइम्स का क्या है, मीडिया क्राइम्स को रिपोर्ट करता है तो मीडिया के बाइसेस क्या हैं. लॉ को रेफर करें, खासकर इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट में, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट में, सेकेंडली साइबर क्राइम्स वाले पार्ट में, क्योंकि अब वो important, and thirdly आपका juvenile justice system है. There is one question that I can always be sure, and that is कि juvenile justice system से related एक सवाल आपको हर ऑब्जेक्ट. अच्छा, एक चीज और याद रख लेंगे रूल ऑफ थंब कि क्रिमिनल को सजा देना मकसद नहीं है, क्राइम को प्रिवेंट करना मकसद है. क्रिमिनोलॉजी की एक चीज जिसको हम रिफॉर्मेटिव थ्योरी कहते हैं, वो अगर आप ज़हन में रखें तो आप बहुत सारे सवालात के जवाब भी सही देंगे और टू द पॉइंट भी देंगे और हाई स्कोर भी. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एज आई ऑलवेज से, योर इन्फॉर्म्ड opinion and your critical analysis of every topic, every subject, every important issue. That is very important. That's it. We are done with my story, with the formal presentation. Now let's go to the questions part. So where are the questions? Let me see the questions. No, I can't see the questions. Just give me a minute. Actually, you can also text it to Miss Noor. I am also opening my, yeah, I'm there. You are audible, you are not audible. Sir, do you think the craze of CSS has compensated for the lost wages being earned in? That is not related to the topic of today. I think the issue or the problem is more about what we like to do. ठीक है, in our lives, और वो हमारी preferences और priorities of life क्या है, वो डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है. तो my priorities were very straight. I'm a family oriented person, और मैं उसी के साथ साथ I like to explore new cultures, new areas with quality of life. तो बाकी MNCs was very fulfilling experience, and to be honest, I earned so much money that even now, till now, I'm living off my savings. So my savings have run out now, and that's why I'm proceeding for my posting abroad कि वहाँ पर थोड़े से हालात बेहतर होते हैं. Financially, maybe it's not so rewarding, but at the same time, if I look back, there is a great amount of fulfillment in terms of your personal development, especially in foreign service. PAS, PSP are good services, no doubt, but at the same time, आपने देखा है जैसा उनकी जो सर्विस डायनामिक्स हैं, अच्छी खासी प्रेशर के अंदर अच्छे खासे कॉम्प्रोमाइज़ेस के साथ सर्विस गुजारना पड़ता है. फॉरेन सर्विस उस लिहाज से आपके लिए बहुत रिवॉर्डिंग है. देन यू गेट टू stay at the best places, you get to interact with the best people, so that's also fulfilling. But compensation in terms of money, I don't think so. I don't think. But you still face a similar dilemma. Okay, try to resolve it. If you still need some advice, so I'm there. That's the best thing I can offer you. Yes, any other question, any other comment, anything?
Okay, I don't think there is any other question. So, Noor, what do you suggest? Should we be saying bye? जनरल कोई सवाल है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं. So let's see if okay, I think this is it. If there is any other question, just again let me know, or maybe I can answer it through Nearpeer's platform. That's fine. Thank you very much, everybody. And that's all from my side. Let's call it a day.